listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, Thank you for joining us today. हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। This is the second last in the series of messages on the life of Moses. मूसा के जीवन पर आधारित संदेश श्रृंखला का ये अंतिम से पहला कार्यक्रम है And I want to begin by telling you a statistic from the world of management. और मैं आपको संचालन जगत के बारे में कुछ आंकड़े बताते हुए प्रारंभ करना चाहता हूँ। I am told that the average institution is made up of people in the following categories. मुझे बताया गया है कि एक साधारण संस्था इन श्रेणियों के लोगों को मिलाकर बनती है। About 10% are visionaries. करीबन 10% भविष्य के लिए योजनाबद्ध होते हैं। They are the people who are action oriented. ये वो लोग हैं जो कार्य केंद्रित होते हैं। They say, just point the way to me and I am ready to go. वो कहते हैं बस मुझे रास्ता बताओ और मैं चलने के लिए तैयार हूँ। They see the big picture. वो ऊंची सोच रखते हैं। They are the people who are not afraid to move out of their comfort zone. ये वो लोग हैं जो अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर आने से नहीं डरते। Next, there is the 80% of people who are neutral. अगले 80% लोग तटस्थ होते हैं। They say, I am willing to move, but only if you can prove to me that this move is good. वो कहते हैं मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन केवल तभी जब तुम मुझे ये सिद्ध कर दो कि ये सही है। I am ready to embrace the vision, but I have to see some evidence. मैं इस दर्शन को अपनाने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे कुछ सबूत चाहिए। They say, I am ready to follow if I can be sure that I am led in the right direction. वो कहते हैं कि मैं पीछे चलने के लिए तैयार हूँ यदि मुझे यकीन हो जाए कि मुझे सही दिशा में ले जाया जा रहा है। Then there is the bottom 10%. और फिर निचले 10% लोग हैं। These folks are not going to move forward no matter what. ये लोग आगे नहीं बढ़ते चाहे कुछ भी हो जाए। They are not going to go anywhere. वो कहीं नहीं जाने वाले। These are the people who disagree just for the sake of disagreeing. ये वो लोग हैं जो असहमत होते हैं क्योंकि बस उन्हें असहमत होना है। These are the ones who, if you say up, they say down. ये वो लोग हैं यदि आप कहें ऊपर तो ये कहेंगे नीचे। If you say left, they will say right. यदि आप कहें बाएं तो ये कहेंगे दाएं। If you say wrong, they say right. यदि आप कहें गलत तो ये कहेंगे सही। No matter what you say, they are going to be in the opposite side. चाहे आप जो भी कहें वो हमेशा विरोध में ही खड़े होंगे। If these statistics are right, I thank God there are only 10% of them. यदि ये आंकड़े सही हैं तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे लोगों की संख्या केवल 10% है। Let me give you example of people who were pessimistic about the future. मैं आपको उन लोगों का एक उदाहरण देता हूं जो भविष्य के बारे में निराशावादी होते हैं। In 1825, someone said, सन 1825 में किसी ने कहा, what can be more absurd than the prospect of locomotive traveling twice as fast as the stagecoach? इससे अधिक बेतुकी बात क्या हो सकती है कि रेलवे इंजन की संभावना घोड़ा गाड़ी से केवल 2 गुना तेज चलने की है। So, my friend, ponder this. और इसलिए मेरे श्रोता मित्र इस बात पर विचार कीजिए। It was 14 months from the time the people of God left Egypt परमेश्वर के लोगों को मिस्र से निकले हुए 14 महीने हो चुके थे until they arrived at the borders of the promised land. जब तक वो प्रतिज्ञा किए हुए देश की सीमाओं पर पहुंचे। The Lord had taken them on a long route in an attempt to train them in obedience of faith. उन्हें विश्वास की आज्ञाकारिता सिखाने की कोशिश में परमेश्वर उन्हें लंबे मार्ग से लेकर गया था। During that time, the Lord gave them the law and taught them to worship and sacrifice. इस समय के दौरान परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी और उन्हें उपासना करना और बलिदान चढ़ाना सिखाया। God said to Moses in the book of Numbers chapter 13, गिनती की पुस्तक 13 अध्याय में परमेश्वर ने मूसा से कहा, get some men to go into the land which I am giving you. कुछ पुरुषों को ले कि वो उस देश में जाएं जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। My listening friend, I don't want you to miss this point. मेरे श्रोता मित्र, मैं नहीं चाहता कि ये भाग आपसे छूट जाए। If you miss this point, you miss the whole message. यदि आपसे ये भाग छूट गया तो ये सारा संदेश जाता रहेगा। God said for them to go to the land which I am giving you. परमेश्वर ने उनसे कहा कि उस धरती में जाओ जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। Not the land I am hoping to give you. ये नहीं कि वो धरती जो मैं देने की आशा कर रहा हूँ। Not the land that I am thinking about giving you. ये नहीं कि वो धरती जो मैं तुम्हें देने के बारे में सोच रहा हूँ। Not the land that I will possibly give you. ये नहीं कि वो धरती जो मैं संभवतः तुम्हें दे दूं।
No, he said, the land that I am giving you. नहीं, उसने कहा वो धरती जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। So Moses selects one representative from each tribe. तो मूसा हर गोत्र में से एक एक प्रतिनिधि को चुनता है। And the 12 go to Canaan. और 12 लोग कनान देश को चले जाते हैं। After 40 days of looking around the land, 40 दिन तक धरती का निरीक्षण करने के बाद they came back and reported incredible prosperity and fertile land. वो वापस आए और उन्होंने वहां की अविश्वसनीय समृद्धि और उपजाऊ धरती के विषय में बताया। They brought back a bunch of grapes so large that it took 2 men to carry it on a pole between them. वो वहां से अंगूरों के कुछ गुच्छे लाए जो इतने बड़े थे कि उन्हें 2 आदमियों को एक डंडे पर रखकर उठाना पड़ा। But that's not the end of the story. परंतु ये कहानी का अंत नहीं है। 10 of the 12 men brought their own human analysis of the situation instead of God's vision. 12 में से 10 व्यक्ति वहां की स्थिति के बारे में परमेश्वर के दर्शन के बजाय अपने मानवीय विश्लेषण लेकर आए। 10 of the 12 brought their own worldly wisdom instead of godly wisdom. 12 में से 10 व्यक्ति ईश्वरीय समझ के बजाय अपनी सांसारिक समझ लेकर आए। And only 2 of the 12 took God at his word and were ready to move. और 12 में से केवल 2 व्यक्तियों ने परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पर भरोसा रखा और आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। Only 2 of the 12 believed the promises of God. 12 में से केवल 2 लोगों ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखा। There are 4 things, my listening friend, that I want to talk to you about in this passage. मेरे श्रोता मित्र, 4 बातें हैं जिनके बारे में इस भाग में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। First, पहली, the majority is always wrong when God is not at the center. जब परमेश्वर केंद्र में नहीं होता तो अधिकतर लोग हमेशा गलत होते हैं। Second, दूसरी, obedience and not opinion will bring you blessing. राय नहीं, आज्ञाकारिता आपके लिए आशीष लाएगी। Thirdly, तीसरी बात, the giants become grasshoppers in the eyes of faith. विश्वास की दृष्टि में दैत्य भी टिड्डे बन जाते हैं। Fourthly, चौथा, the obedience of faith has its own reward. विश्वास की आज्ञाकारिता के अपने प्रतिफल हैं। Let's look at the first one. आइए पहली बात को देखें। The majority is always wrong when God is not at the center. जब परमेश्वर केंद्र में नहीं होता तो अधिकांश लोग गलत होते हैं। When the 10 out of the 12 came back, जब 12 में से 10 लोग वापस आए, they said the people who live in Canaan are giants. उन्होंने कहा कनान में रहने वाले लोग महामानव हैं। They would wipe us out with their breath. वो हमें अपनी फूंक मारकर मिटा देंगे। They looked at the circumstances and saw the impossibility. उन्होंने परिस्थितियों को देखकर इसे असंभव मान लिया। No sooner had they finished giving their negative report than the rest began to wail. और उनकी इस नकारात्मक सूचना के बाद ज्यादा देर नहीं हुई थी कि बाकी लोगों ने विलाप करना शुरू कर दिया। Oh no, we're going to die, we're going to die. हो नहीं, हम मर जाएंगे, हम मरने वाले हैं। My listening friend, listen carefully. मेरे श्रोता मित्र, ध्यानपूर्वक सुनिए। When you are at the center of the will of God, जब आप बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा में होते हैं the majority is always wrong. तो अधिकांश लोग गलत होते हैं। When I am at the center of the will of God, जब मैं बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा में हूँ God always keeps his promises to me. तो परमेश्वर मेरे प्रति हमेशा अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है, Even if no one else believes them. चाहे कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। Let's look at the second point. आइए दूसरे विचार को देखें। Obedience, not opinions, will bring you blessings. राय नहीं, आज्ञाकारिता आपके लिए आशीषें लाएगी। God promised Abraham the land 400 years before Moses. परमेश्वर ने मूसा से 400 वर्ष पहले अब्राहम के साथ इस धरती की प्रतिज्ञा की थी। God reaffirmed that promise to Moses. परमेश्वर ने मूसा के साथ उस प्रतिज्ञा की फिर से पुष्टि की। God confirmed and reconfirmed his promise through supernatural interventions. परमेश्वर अलौकिक हस्तक्षेपों के द्वारा अपनी प्रतिज्ञा को निश्चित और पुनर्निश्चित करता रहा। God gave them the Holy Spirit in the form of a cloud to lead them. परमेश्वर ने उनके मार्गदर्शन के लिए एक बादल के रूप में उन्हें पवित्र आत्मा दिया। God gave them food to sustain them. परमेश्वर ने उन्हें कायम रखने के लिए भोजन दिया। God supernaturally kept the clothes that they were wearing from being worn out.
परमेश्वर ने अलौकिक रीति से उनके कपड़ों को जो उन्होंने पहने हुए थे फटने से बचाए रखा। Finally, God said, it's time to go. अंत में परमेश्वर ने कहा चलने का समय आ गया है। But the moment they faced the first obstacle, they said, where is God? परंतु जैसे ही उन्होंने पहली कठिनाई का सामना किया, उन्होंने कहा कहाँ है परमेश्वर? My listening friend, मेरे श्रोता मित्र, in your walk with the Lord, you will face obstacles. प्रभु के साथ अपनी चाल में आपके सामने रुकावटें आएंगी। You will face impossibilities. आप असंभवताओं का सामना करेंगे। You will face doubt. आप संदेह का सामना करेंगे। You will face fear. आपको भय का सामना करना पड़ेगा। You will face opinions of all sorts. आपको लोगों की हर तरह की धारणाओं का सामना करना पड़ेगा। You will face temptation to stay in your comfort zone. आप अपने आराम के क्षेत्र में ही बैठे रहने की परीक्षा का सामना करेंगे। But none of that should tempt you to disobey the Lord. परंतु इनमें से कोई भी बात आपको प्रभु की अवज्ञा करने के लिए बहकाने न पाए। None of that should tempt you to give up in following the command of God. इनमें से कोई भी बात आपको इस बात के लिए बहका ना पाए कि आप परमेश्वर की आज्ञा पर चलना छोड़ दें। Instead, इसके बजाय you must dare to believe God and His Word. आपको परमेश्वर और उसके वचन पर विश्वास रखने का साहस करना आवश्यक है। Dare to obey Him unconditionally. बिना शर्त उसकी आज्ञाकारिता करने का साहस। Dare to face your obstacles head on. अपनी रुकावटों का आमने सामने मुकाबला करने का साहस। Dare to say to the giants in your life, with God's power, you are nothing but grasshoppers. अपने जीवन के महामानवों से यह कहने का साहस कि परमेश्वर की सामर्थ से तुम मेरे सामने टिड्डों के अलावा कुछ नहीं हो। The majority is always wrong when God is not at the center. जब परमेश्वर केंद्र में नहीं होता तो अधिकांश लोग गलत होते हैं। Obedience, not opinions, will bring you blessings. राय नहीं परंतु आज्ञाकारिता आपके लिए आशीषें लाती है। Thirdly, तीसरी बात, giants become grasshoppers through the eyes of faith. विश्वास की दृष्टि के द्वारा महामानव भी टिड्डे बन जाते हैं। The 10 people saw giants and themselves as grasshoppers. 10 लोगों ने महामानवों को देखा और खुद को टिड्डों जैसा देखा। But Joshua and Caleb saw the opposite. परंतु यहोशू और कालेब ने इसके विपरीत देखा। They saw themselves with God to be giants and the enemy is a grasshopper. उन्होंने परमेश्वर के साथ खुद को महामानवों और शत्रु को टिड्डों के रूप में देखा। If you look at Book of Numbers, chapter 13, verse 30, यदि आप गिनती की पुस्तक 13 अध्याय के 30 पद को देखें, you will see that Caleb silenced the people for Moses and said, let's get up at once and take the land. We are well able to conquer it. आप देखेंगे कि मूसा के लिए कालेब ने लोगों को शांत किया और कहा, आओ हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। I love Caleb. कालेब मुझे बहुत अच्छा लगता है। First, he told them to be quiet. पहले उसने उन्हें शांत होने के लिए कहा। Then he said, let's go. फिर उसने कहा, आओ चलें। To stand before a panicking mob and to challenge their unbelief. एक घबराई हुई भीड़ के सामने खड़े होना और उनके अविश्वास को चुनौती देना, That took unflinching faith in God's word. इसके लिए परमेश्वर के वचन पर अडिग विश्वास की आवश्यकता थी। If you have not already discovered what I'm going to tell you, you will. यदि अब तक आपको पता नहीं चला है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं तो चल जाएगा। People who are doubters and naysayers and negative and criticals, they hate people of faith. वो लोग जो संदेह करने वाले, नकारात्मक और आलोचक होते हैं, वो विश्वास रखने वाले लोगों से नफरत करते हैं। Those who enjoy focusing on their circumstances and delight in feeling sorry for themselves. वो जो अपनी परिस्थितियों पर केंद्रित रहकर खुश रहते हैं और अपने लिए दुखी होने में आनंद पाते हैं। They do not like someone who brings them a word from the Lord. वो अपने पास प्रभु का वचन लेकर आने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करते। In the book of Numbers, chapter 14, verse 9, गिनती की पुस्तक 14 अध्याय के 9 पद में Joshua and Caleb were pleading with the people. यहोशू और कालेब लोगों से ये निवेदन कर रहे थे, Do not rebel against God. Do not be afraid. The Lord is with us. परमेश्वर के विरुद्ध बलवा ना करो, मत डरो, प्रभु हमारे साथ है। And how did the people receive this word of faith? और लोगों ने विश्वास के इस वचन को कैसे लिया? Verse 10 says, 10 पद कहता है, the whole assembly talked about stoning them. सारी मंडली चिल्ला उठी कि उन पर पथराव करो।
but the Lord intervened. परंतु प्रभु ने हस्तक्षेप किया। If it were not for the Lord's intervention, यदि प्रभु बीच में नहीं आता Joshua, Caleb, Moses, and Aaron would have been under a pile of rocks. तो यहोशू, कालेब, मूसा और हारून पत्थरों के ढेर के नीचे दबे होते। My listening friends, please listen carefully. मेरे श्रोता मित्र कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। God will never let you down when you take a stand for Him. जब आप परमेश्वर के लिए कोई निश्चय करते हैं तो परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देता। Even if you have to seal your testimony with your own blood, चाहे आपको अपनी गवाही पर अपने खून की मोहर लगानी पड़े, you will only discover that the glories of heaven are awaiting you. आप केवल ये पाएंगे कि स्वर्ग की महिमा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। Let me ask you this. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, What is the giant that keeps you in fear? वो कौन सा दैत्य है जो आपको भय में रखता है? Who is the giant that is keeping you from the life of faith? वो कौन सा दैत्य है जो आपको विश्वास का जीवन जीने से रोक रहा है? What giant in your life frightens you and keeps you worried and anxious? आपके जीवन में वो कौन सा दैत्य है जो आपको भयभीत कर रहा है और आपको चिंतित और घबराहट में रखे हुए है? God can give you victory over your giants. आपके दैत्यों पर परमेश्वर आपको विजय दे सकता है। Let me summarize again. मैं फिर से सारांशित करता हूँ। The majority is always wrong when God is not at the center. जब परमेश्वर केंद्र में नहीं होता तो अधिकांश गलत होते हैं। Obedience, not opinions, will bring you blessings. राय नहीं परंतु आज्ञाकारिता आपके लिए आशीषें लाती है। The giants become grasshoppers through the eyes of faith. विश्वास की दृष्टि के द्वारा दैत्य भी टिड्डे बन जाते हैं। Finally, अंत में obedience of faith has its own rewards. विश्वास की आज्ञाकारिता के अपने प्रतिफल हैं। In the book of Joshua chapter 14, यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय में we can read all about how Caleb and Joshua 40 years later went and took over the land. हम इस बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं कि कैसे 40 साल बाद यहोशू और कालेब ने जाकर उस धरती पर अधिकार कर लिया। They turned the land of so-called giants into grasshoppers. उन्होंने दैत्य कहे जाने वालों की उस धरती को टिड्डों की धरती बना दिया। As far as Caleb was concerned, the bigger God's enemies are, the harder they fall. जहां तक कालेब का संबंध था तो जितने बड़े परमेश्वर के शत्रु होते थे उतनी बुरी तरह से वो हारते थे। Caleb knew that when the Lord is with you, He will defend you. कालेब जानता था कि जब परमेश्वर आपके साथ है तो वो आपका बचाव करेगा। Caleb knew that when the Lord is with you, He will protect you. कालेब जानता था कि जब प्रभु आपके साथ है तो वो आपकी रक्षा करेगा। Caleb knew that when the Lord is with you, He will make the giants to be dwarfs. कालेब जानता था कि जब प्रभु आपके साथ है तो वो दैत्यों को भी बौने बना देगा। My listening friend, I want to tell you that the crisis we have today is a crisis of faith. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम में जो संकट है वो है विश्वास का संकट। What we need today are men and women of Caleb's faith. आज हमें कालेब जैसा विश्वास रखने वाले पुरुष और स्त्रियों की आवश्यकता है। Caleb was receiving his strength from the Lord. कालेब अपनी सामर्थ प्रभु से प्राप्त कर रहा था। And so, while those unbelieving people were wasting away in worry and anxiety and fear, Caleb was being renewed by faith. और इसलिए जब बाकी अविश्वासी लोग चिंता, घबराहट और भय से डूबते जा रहे थे तो कालेब विश्वास के द्वारा नई सामर्थ प्राप्त कर रहा था। While the negative people were wasting away, Caleb was getting younger and stronger and looking forward by faith to getting into the land of promise. जिस समय नकारात्मक लोग बेहाल हो रहे थे तो कालेब बल पाते हुए तकड़ा हो रहा था और विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा की धरती में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था। As I conclude, I want to ask you a series of questions. समाप्त करते हुए मैं आपसे एक गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Do you wake up in the morning worrying about what you are going to do about your future? क्या आप सुबह इस चिंता के साथ उठते हैं कि आप अपने भविष्य के बारे में क्या करेंगे? Do you worry about your health, your family, your problems? क्या आप अपने स्वास्थ्य, परिवार और अपनी समस्याओं के कारण चिंतित हैं? Do you go to bed at night thinking about those giants in your life? क्या आप अपने जीवन में उन दैत्यों के बारे में सोचते हुए रात को सोते हैं? Let me tell you this. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, As long as you keep allowing these giants to be
your focus, जब तक आप इन दैत्यों को अपने ध्यान का केंद्र बनाए रखेंगे, you will not experience the rest that comes from trusting in the promises of God. आप उस आराम का अनुभव नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखने से मिलता है। As long as you nurse your giants, God's blessings cannot follow you. जब तक आप अपने दैत्यों की देखभाल करते रहेंगे, तब तक परमेश्वर की आशीषें आपके पीछे नहीं आएंगी। There is nothing more devastating to a child than to discover that adults do not always keep their promises. एक बच्चे के लिए बर्बादी का इससे बड़ा कारण और कोई नहीं है जब वो पाता है कि बड़े हमेशा अपने वादे पूरे नहीं करते। Parents say, I promise. माँ बाप कहते हैं मैं वादा करता हूँ, Then they don't keep their promises. फिर वो अपने वादे को पूरा नहीं करते। The children grow up distrusting adults. बच्चे अविश्वासी जवानों के रूप में बड़े होते हैं। Not so with God. परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। He always keeps his promises. वो हमेशा अपने वादे पूरे करता है। The question is, प्रश्न है, can I keep on believing his promises? क्या मैं उसके वादों पर विश्वास करता जाऊं? Can I trust him enough to act on his promises? क्या मैं उस पर इतना विश्वास करता हूं कि उसके वादों पर भरोसा रखते हुए कार्य करूं? Your answer will determine your reward of faith. आपका उत्तर ही आपके लिए विश्वास का प्रतिफल तय